ای ٹی وی اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات۔ بنگلورو کے وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں عید میلاد النبی کے موقع پر سیرت کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر علماء کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، موجودہ دور میں ملک اور ملت کے مسائل پر روشنی ڈالی۔ سیرت النبی کے کانفرنس میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کے عدم شرکت پر مایوسی کا اظہار دیکھنے کو ملا۔ بنگلورو کے وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں مرکزی میلاد و سیرت کمیٹی کے تحت جلسہ عید میلاد النبی کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر اتر پردیش کے معروف عالم دین مولانا نظام الدین نوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ سماجی اور سیاسی حالات کو بہتر بنانے کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ نظام الدین نوری نے اپنے خطاب میں یوپی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ آدمی جب بلندی پہ جاتا ہے تو پستی والوں کو بھول جاتا ہے، رتبہ پا جاتا ہے تو نیچوں کو بھول جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے تو غریبوں کو بھول جاتا ہے۔ یہاں کا حال تو ہم کو نہیں معلوم، مگر اتر پردیش آئیے، ووٹ مل گیا تو ووٹروں کو بھول گئے، سپورٹ مل گیا تو سپورٹروں کو بھول گئے۔ کسی کو دیکھ کے شعلہ ٹاڈوی نے کہا تھا اور اچھی بات کہی تھی کہ گھر بیچ کر چناؤ میں آیا ہوں دوستو، مخلص ہوں آپ کا، مجھے پہچان لیجئے، پھر 5 سال تک میں کبھی آؤں گا یہاں، بس ایک بار میرا کہا۔ گزشتہ 40 سال سے بنگلورو میں ہونے والا یہ جلسہ کرناٹک میں سیرت النبی کا سب سے بڑا جلسہ مانا جاتا ہے۔ اس جلسے میں گورنر یا وزیر اعلیٰ کی شرکت کی روایت رہی ہے۔ سابقہ بی جے پی حکومت کے دور میں اس روایت کو توڑا گیا۔ اب ریاست میں کانگریس حکومت اقتدار میں ہے، لیکن سیرت نبی کے اس بڑے جلسے میں نہ وزیر اعلیٰ شریک رہے اور نہ ہی گورنر۔ سی ایم نہیں آتے تھے، لیکن ہمیں امید تھی کہ مائنارٹی کی حکومت، اقلیتوں کی حکومت ہے، ساری مصروفیات کو ترک کر کے، کیونکہ ایک عظیم الشان جلسہ ہے مسلمانوں کا، وہ آئیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا، جس کا ہمیں ایک قسم سے افسوس بھی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ایسی اشد ضروریات ہیں، ایسی اشد مصروفیات ہیں جس کے باعث وہ نہیں آ سکے۔ اس موقع پر بنگلورو کی مرکزی میلاد و سیرت کمیٹی نے ریاستی وزیر حج روشن بیگ کو سپاس نامہ پیش کیا، ساتھ ہی اردو میڈیا کے نمائندوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ ای ٹی وی نیوز بنگلورو۔ جشن میلاد النبی کے موقع پر حیدرآباد کے دارالسلام میں نعتیہ مشاعرہ ہوا۔ اس مشاعرے میں ملک بھر کے نام اور شعراء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے کلام پیش کیے۔ کم میری رسالت سے ہے نسبت پھر بھی، ایک ہی شم رسالت سے ہے نسبت پھر بھی، ایک ہی شم رسالت سے ہے نسبت پھر بھی، اختلافات نظر آتے ہیں پروانوں، اختلافات نظر آتے ہیں پروانوں میں۔ نورانی ہر ایک چہرہ، نورانی ہر ایک چہرہ ہر شخص مثالی ہے، نورانی ہر ایک چہرہ نورانی ہر ایک چہرہ ہر شخص مثالی ہے، آقا کے غلاموں کی کیا شان نرالی ہے۔ نورانی ہر ایک چہرہ ہر شخص مثالی ہے، آقا کے غلاموں کی کیا شان نرالی ہے۔ اور ایک شعر معذرت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ کیوں تفرقہ اندازی اسلام پسندوں میں، کیوں تفرقہ اندازی، کیوں تفرقہ اندازی اسلام پسندوں میں، فرقوں کی کیوں تفرقہ اندازی اسلام پسندوں میں، فرقوں کی مسلمانیں دیوار اٹھا لی ہے، فرقوں کی مسلمانیں دیوار اٹھا لی ہے۔ محفل شاد پھر مبارک ہو، ذہن آزاد پھر مبارک ہو، محفل شاد پھر مبارک ہو، ذہن آزاد پھر مبارک ہو، ساری دنیا کے مومنوں تم کو عید میلاد پھر مبارک ہو۔ آداب، جزاک اللہ، آداب۔ جیل میں بند ہیں تو کیا غم ہے، ظالموں کی صفوں میں ماتم ہے،
जेल में बंद हैं तो क्या गम है, जालिमों की सफों में मातम है। उम्मती है रसूल अकरम के, ये सादत बताओ क्या कम है। बेंगलुरु में रंग तरग नामी तंजीम के तहत सूफियाना मौसीकी का प्रोग्राम हुआ। इस तकरीब में राजस्थान के मारूफ सूफी फनकार मुख्तार अली ने देही तहजीब व तमद्दुन पर मुश्तमिल सूफियाना गीत पेश किए। ये प्रोग्राम दरअसल बुनकरों के एहतजाज का एक हिस्सा था। शुमाली कर्नाटक में बुनकरों के मसाइल और मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज जारी है। घर लैला ते जांदा। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मुसलमानों के हालात हैं वो कई जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप से भी गए गुजरे हैं। जब हम माइनॉरिटी कहते हैं तो माइनॉरिटी एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अलग अलग माइनॉरिटीज के अलग अलग इश्यूज होते हैं। 1984 के सिख मुतासरीन जो वाराना फसादात में हुए थे उनके लिए 650 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वही पैकेज जब गुजरात के लिए जाता है तो वो वापस आ जाता है। 84 के रेट्स में दिए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को ही दिए हैं, हम डायरेक्ट डिस्पेंस नहीं कर सकते। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहां रियासती हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने भी कासिबाना कब्जा किया हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम इन तमाम जो नाजायज कब्जे या कब्जे जो जागीर अबालिशन इनाम के आए हैं हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान से देखिए खास मुलाकात जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, खबर दिन भर के साथ पे हुई ना। पहले हेडलाइंस। आदर्श घोटाला मामला, CBI ने अशोक चौहान का नाम खारिज करने की अदालत से की अपील। आम आदमी पार्टी MLA विनोद कुमार बिन्नी का केजरीवाल पर हमला, वजारत और MP के मामले पर केजरीवाल के इल्जाम को बताया झूठ। मायावती ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम, कहा 2003 में कौमी सतह पर इत्तेहाद के लिए CBI का किया था गलत इस्तेमाल।
और इराक में तशद्दुद की ताज़ा लहर, 46 अफराद हलाक, मिलिटेंटों ने अंबर सूबे के मजीद इलाकों को लिया अपने कब्जे में। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला अशोक चौहान को राहत मिलने की राह हमवार हो रही है। सीबीआई ने खुसूसी अदालत में एक अर्जी पेश की है जिसमें घोटाले के मुलजिमीन की फहरिस्त से अशोक चौहान का नाम हटाने की दरख्वास्त की गई है। सीबीआई ने ये इकदाम रियासती गवर्नर के शंकर नारायणन के जरिए अशोक चौहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत देने से इनकार के बाद किया है। जराये का कहना है कि जांच एजेंसी ने माहिरीन कानून से राय मशवरा किया। एजेंसी अगर चौहान के मुलविस होने के सिलसिले में पुख्ता सबूत हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो वो गवर्नर से इनकार के ताल्लुक से नजरसानी की दरख्वास्त कर सकती है। अशोक चौहान फर्द जुर्म में अपना नाम शामिल किए जाने के एजेंसी के इकदाम को अदालत में चुनौती दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर बगावत के आसार दिखाई देने लगे हैं। पार्टी के रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी से नाराजगी जताते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल हुकूमत अपने वादों को वफा करने में नाकाम है। इस सिलसिले में विनोद कुमार बिन्नी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करने वाले हैं। नाराजगी का नहीं है, विषय है मुद्दों का। जिस मुद्दों के आधार पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा उनके कथनी और करनी में फर्क आ गया, इफ एंड बट आ गया। उसके लिए हम कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पता चलेगा कौन महत्वाकांक्षी है, कौन महत्वाकांक्षी नहीं है। जब मुद्दे आपके सामने आएंगे, जब आप जनता के बीच में जाएंगे, सब चीजें जनता के बीच में जाएंगे, उसके बाद जनता ये तय करेगी कौन महत्वाकांक्षी लोग है, कौन नहीं। उधर दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया है कि बिन्नी ने पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग में अपने इलाके में दरपेश मसाइल क्यों नहीं उठाए। केजरीवाल ने बिन्नी की नाराजगी की वजह ये भी बताई कि वो दिल्ली में वजीर और फिर एमपी का टिकट चाहते थे। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। तो अब कल शाम को मैंने, आप लोगों को पता है, सारे कैंडिडेट्स की मीटिंग ली थी और उनसे पूछा था भी किस किस के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और उनको लिखा गया था। वहां भी उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। भाई अगर मुद्दे थे तो वहां पे उनको बोलना चाहिए था सबके सामने। आप लोगों को पता है कल कड़कड़डुमा में वहां पे सारे 70 के 70 कैंडिडेट्स के विधायकों की भी और दूसरे हारे हुए कैंडिडेट सबकी मीटिंग ली थी। भाई किस किस के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है सारी, वहां उन्होंने एक लाइन नहीं बोली। अब अगर वो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, अगर उन मुद्दों में कोई वो है, हम जरूर मुद्दों को सॉल्व करेंगे। मुद्दों के लिए तो हम आए हैं। उधर विनोद कुमार बिन्नी ने अरविंद केजरीवाल के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। अगर अरविंद भाई ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उनसे बड़ा मेरे ख्याल से कोई झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान को साक्षी मानकर उनको कसम खानी होगी अगर इस बात को, अगर उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि मैंने कभी उनसे जाके ये बोला होगा मुझे आप लोकसभा टिकट दे दीजिए, या मैंने उनसे जाके ये बोला हो कि भाई मुझे विधानसभा टिकट दे दीजिए, कभी जाके मैंने ये बोला हो कि मुझे आप मंत्री बना दीजिए, कभी जाके मैंने ये बोला हो कि आप मुझे संसद सचिव बना दीजिए। अगर स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो उस स्टेटमेंट पे मेरा ये जवाब है। बीजेपी ने दिल्ली हुकूमत से मुतल्लिक तबसरा करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत खुद ही अपने बोझ से गिर जाएगी। बीजेपी लीडर वीके मल्होत्रा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जो कि गैर मुनासिब हैं। सारी बातें लगातार एक के बाद होती जा रही हैं। एकदम से ऐसा हजारों आदमी इकट्ठे कर लिए कि आ जाओ, सारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को ये कह दिया कि आपको परमानेंट कर देंगे। एक भी बात कर नहीं पा रहे हैं और दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं और देश की जनता को धोखा देने की बात कर रहे हैं। तो इस सबको देखा जाए तो ये तो अपने ही बोझ से गिरने वाली पार्टी है। परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जिस पार्टी को सबसे भ्रष्ट कहा, जिस पार्टी को पूरी तरह से मुकाबला करके चुनाव में आए, उसी पार्टी का सहयोग लेकर और उस पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके ये चुनाव चला रहे हैं, ये तो एक तरह का विश्वासघात है। और अब बात करेंगे एक और बड़ी पार्टी की। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में एक बड़ी रैली से खिताब किया। इस मौके पर मायावती ने मुख्तलिफ सियासी जमातों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि चूंकि वो दलित है लिहाजा सभी पार्टियां उनके खिलाफ मुत्तहिद हो जाती हैं। मायावती ने बीजेपी पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि उसने बहुजन समाज पार्टी पर दबाव बनाने के लिए 2003 में सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया था। मायावती ने मुसलमानों की हिमायत हासिल करने की कोशिश भी।
उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने सावधान रैली में जहां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं मुसलमानों से अपील की कि वो बीएसपी की मुकम्मल तायीद करे और अपना वोट न बंटने दे ताकि बीजेपी के तूफान को इक़्तिदार में आने से रोका जा सके। मायावती ने मुसलमानों को यकीन दिलाया कि सचर कमेटी को पूरी तरह लागू करने के साथ साथ उनके तमाम हुकूक की बाजियाबी की जाएगी। यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग अपना वोट बांटने की बजाय इसे एक तरफा बीएसपी के ही लोगों को, बीएसपी के उम्मीदवार को दे देते हैं, तो इससे फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी और ऐसी स्थिति में फिर केंद्र में ये पार्टी बहुत आसानी से अपनी सरकार नहीं बना सकती है और ऐसे हालातों में या ऐसी स्थिति में इतना ही नहीं बल्कि फिर यहाँ सांप्रदायिक ताकतें भी काफी हद तक जरूर कमजोर हो जाएंगी। यहाँ जातिवादी व्यवस्था व सांप्रदायिक ताकतों के शिकार लोगों के अर्थात दलित व आदिवासी वर्गों के हितों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों को भी ध्यान में रखकर यहाँ देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी पूरी ईमानदारी से लागू कराने की तरफ भी विशेष ध्यान देगी। मायावती ने मुजफ्फरनगर फसाद पर तबसरा करते हुए कहा कि फसाद ज़दागान की खाना बर्बादी के लिए सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार ही नहीं बल्कि मरकज की हुकूमत भी जिम्मेदार है, जिसने समाजवादी को खुली छूट दे रखी है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में सदर राज के निफाज का भी मुतालबा किया। सांप्रदायिक दंगों व तनाव आदि की मार से तो मुजफ्फरनगर व शामली जिले के पीड़ित लोग अभी तक भी उभर नहीं पाए हैं, जबकि ऐसे हालातों में केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही यूपीए की सरकार को बिना कोई देरी किए हुए या राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदू मुस्लिम समाज में आपसी भाईचारा व सद्भाव पैदा करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश का फिरकावाराना फसाद रियासती हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है। वो मुसलमानों को मनाने के लिए जहां नित नए हथकंडे अपना रही है, वहीं हुकूमत के मुखालिफिन को भी हुकूमत की दुखती रग हाथ आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर लखनऊ में मायावती की रैली और उनके खिताब पर समाजवादी पार्टी के लीडर और रियासती वजीर शिवपाल यादव ने चुटकियां ली हैं। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से शिवपाल यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि मायावती की लॉ की डिग्री जाली है। शिवपाल ने मायावती के जरिए खुद को लड़की बताने पर भी मजेदार चुटकी ली। किताब खुद लिखी हो, शायद आज तक विमोचन लिखने वाला अपनी किताब का खुद विमोचन तो मैंने सुना नहीं, कभी सुना है? तो वही तो बता रहे अपनी मूर्ति जिंदा भी लगा दे और अपनी मूर्ति का अनावरण कर दे। 58 साल तक कोई लड़की होता है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरियान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरियान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज स्वतंत्र कुमार के खिलाफ जिनसी छेड़छाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरा की अर्जी पर मरकजी हुकूमत और स्वतंत्र कुमार को नोटिस जारी किया है। मुतासरा साबिक लॉ इंटर्न ने अदालत से अदालती इदारों में जिनसी हरासानी की शिकायत के इजाले के लिए एक मैकेनिज्म कायम करने की दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि वो साबिक लॉ इंटर्न के जरिए जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर लगाए गए इल्जामात पर कोई इजहार राय नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि साबिक लॉ इंटर्न ने इस मामले की शिकायत इतनी ताखीर से क्यों की। मामले की अगली समाअत 14 फरवरी को होगी। उधर साबिक जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने इस सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट से भी रुजू किया है। ये जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किए हैं सारे रिस्पोंडेंट्स को। रिस्पोंडेंट नंबर 1 सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिस्पोंडेंट नंबर 2 फॉर्मर जस्टिस स्वतंत्र कुमार, respondent number 3 Union of India. Notice has also been issued to the Attorney General, and the Union of India has accepted notice through the Solicitor General. इसमें आज जब बहस हुई मिस्टर हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने जब अपनी बात रखी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो एक विशेष उन्होंने ध्यान हमारा एक प्रेयर पर लिया कि जो प्रेयर है कि आज की तारीख में और जिस समय ये इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अलेज किए जा रहे हैं 2011 में, तब और आज भी एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिसके थ्रू कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कोई रिड्रेस मैकेनिज्म नहीं है। ये जो प्रेयर दी गई है इस पे सुनवाई करनी चाहिए, उसके लिए नोटिस इशू किया गया है। माहीगीरों की हलाकत के मामले में इतालवी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इतालवी हुकूमत ने मुकदमे की कार्रवाई में ताखीर का हवाला देते हुए मरीन्स को इल्जामात से बरी करने की दरख्वास्त की है। इतालवी हुकूमत की जानिब से पेश अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के 1 बरस बाद भी इस मामले में फर्द जुर्म आयद नहीं की गई है। इतालवी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मरकजी हुकूमत को इस मामले में कार्रवाई में तेजी लाने की हिदायत देने की भी दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी पर पीर को समाअत होगी। मौलाना अरशद मदनी के बयान की चारों जानिब मजम्मत हो रही है। मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मुजफ्फरनगर का फसाद मुल्क का सबसे बदतरीन फसाद में शुमार किया जाता है, जिसने गुजरात के नस्लकश फसाद को भी पीछे छोड़ दिया। लोगों का मजीद कहना है कि बात सिर्फ फसाद पर ही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि शरपसंदों की कारस्तानी भी इसे मारा जाता है। लेकिन फसाद के बाद हजारों पनागजीनों के साथ भी हुकूमत का गैर मुनसिफाना रवैया ये साबित करने के लिए काफी है कि यूपी हुकूमत की असल मंशा क्या है। लेकिन जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी वज़ीर आला अखिलेश यादव की कसीदा ख्वानी में ही मसरूफ है। रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब मानते हैं कि मौलाना का बयान मिल्लत को शर्मसार करने वाला है, जबकि रुकने पार्लियामेंट अली अनवर का कहना है कि मौलाना की नजर राज्यसभा की कुर्सी पर है। तो ये चकल्लस मिलता है अलग बस्तियां बनाने का, बस्तियां बना के चंदा आता है, बस्तियां बनती हैं, चंदे होते हैं, हुकूमतें कुछ फायदा करती हैं। अगर उलमाए कराम को सच में क़यादत का शौक था या सच में फिक्र सोच थी तो उनको चाहिए था कि यूपी की असेंबली और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के सामने 10 लाख लोग बैठते और ये कहते जमहूरियत में हमको हमारे मुल्क से उजाड़ा है, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक इनको छत नहीं दे दोगे। जहां ठंडक से बिलक बिलक के बच्चे मर रहे हों, जहां औरतें चिल्ला चिल्ला के कह रही हूं कि मेरी दुनिया कहां गई, वहां आप इतनी जुर्रत कर रहे हैं कि भाई अगर सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो उनको मुबारक हो। मेरी समझ से इस सरकार ने बहुत निकम्मापन किया है और आने वाला इलेक्शन जमहूरियत में हम उसका हिसाब जमहूरियत से ही लेते हैं, इलेक्शन से लेते हैं और हम इंशाल्लाह जवाब लेंगे उनसे। ये आलिम लोग हैं और अपने इल्म का इस्तेमाल अपनी सियासी कुर्सी पक्का करने में करते हैं कई लोग। तो उनके खानदान के कुछ लोग राज्यसभा पहले से पहुंच चुके हैं, अब ये नंबर में है, इनका नंबर है, तो इसीलिए शायद मुलायम सिंह जी इनको भेज दें, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो सुन करके शर्मिंदा हुए हैं इस तरह के बयान पर, क्या गुजरा है वहां के लोगों पर, और इस तरह की बयानबाजी करते लोगों को शर्म नहीं आ रही है।
जमीयत उलमा के सदर अरशद मद्दीन ने मुजफ्फरनगर फसाद पनाह गजीनों के लिए जमीयत की जानिब से बनाए गए मजीद 51 घरों की चाबियां उन्हें सौंपी हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले जमीयत की जानिब से 72 मकानात पनाह गजीनों को बनाकर दिए गए। इस मौके पर अरशद मद्दीन ने कहा कि हुकूमतें खवा वो मरकजी हो या रियासती, वो अक़लियतों और खासकर मुसलमानों के तई संजीदा नहीं है। से बेघर लोगों को 51 मकान की और चाबी दे रहे हैं। इस वक्त हमें ये अफसोस है और ये कहने पर हम मजबूर हैं कि अगर मुल्क की सेकुलर सियासी जमातें अपने वादों को जो अपने मैनिफेस्टो में करती हैं उनको पूरा करती और मुल्क के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के दरमियान जो दोहरे पैमाने हैं उनको न अपनाती तो आज आम आदमी पार्टी की शक्ल में कोई मुतबादिल पार्टी वजूद में न आती और अगर वजूद में आती तो उसकी तरफ आम जनता अक्सरियत और अक़लियत के अफराद इस तरह न दौड़ते जिस तरह आज हमें दौड़ते नजर आ रहे हैं। हम ये बात कहते हैं चाहे वो मरकजी पार्टियां हों, नेशनल लेवल पर हों या सूबाई लेवल के ऊपर हों कि 2014 में अगर मरकज और सूबों में वो चाहती हैं कि उन्हें कामयाबी मिले तो हर अक़लियत और खास तरीके पर मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करना होगा। मुजफ्फरनगर के फिरक़ेवाराना फसादात ने जिन खानदानों को बेघर कर दिया और उन्हें खाना बदोशों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया, जमीयत उलमा हिंद पहले दिन से उसके लिए फिक्रमंद थी और हमने मुसलमानों के ताउन से 72 खानदानों के मकानात की चाबियां पहले मरहले पर सौंपने के बाद आज दूसरे मरहले पर 51 मकानात की चाबियां सौंप रहे हैं और अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी और मुसलमानों का इसी तरह हमारे साथ ताउन रहा तो हम आने वाले दिनों में मजीद खबरें और भी वक्त ब्रेक का। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग का हवाई जहाज है तेरा। ना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में पखाना करेगी, उस पर मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने को आलूदा करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में बैतुल खला बनवा और इस्तेमाल कर। शुरू करे निर्मल भारत तहरीक, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खला। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वक्फ बोर्ड की इमलाक हो या दीगर मसाइल, सब अपनी अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड का ना तो कोई चेयरमैन है और ना ही बोर्ड की नई बॉडी की तश्कील ही हो पाई है।